Okay, bete, let us do some previous year question on independent events, right? चलो शुरू कर दिया कहता जी फेयर कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली ठीक है ते if the tail appears on the first four tosses मतलब एक कॉइन ਨੂੰ टॉस करी गया रिपीटेडली ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਟੌਸਸ ਤੇ ਟੇਲ ਆਇਆ then find the probability that head appearing on the fifth toss ਇੱਥੇ head ਆਉਣ ਦੀ probability I guess simplest question ਪੰਜਵੀਂ ਟੌਸ ਤੇ ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਤੇ 1/2 ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਟੇਲ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੈਡ ਆਵੇ ਪੰਜਵੀਂ ਟੌਸ ਨੂੰ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਟੌਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ 1/2 ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹਾਫ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ठीक है तो इस करके ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम आ गया राइट अच्छा 13 एडवांस का क्वेश्चन है कहता जी चार बंदे इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੈਕਟਲੀ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੀਜੇ ਦੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ A ਇਜ਼ ਦਾ ਇਵੈਂਟ that A solves the problem ਹੈ ਨਾ solves the problem ਇੱਦਾਂ ਹੀ B ਲਈ B solves the problem ਤੇ probability of A ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ A ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੇ 1/2 ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ B ਵਾਸਤੇ C ਤੇ D ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ then the probability that the problem is solved ਠੀਕ ਹੈ problem is solved correctly by at least one of them so probability that problem is solved by at least one of them ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਲੈਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ probability at least one of them ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਹਨ ਐਟਲੀਸਟ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰੋਂ ਚਾਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਬਣ ਜਾਣੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਬਣਨੇ ਏ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰੇ ਡੀ ਨਾ ਕਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਏ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬੀ ਕਰੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਡੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦੋ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਆਏਗਾ ਬਟ clearly probability at least one of them solve ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ that is equal to what 1 minus probability no one solves ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਸਮਝਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ probability work done is 1 minus probability work not done ਅਗਰ ਆ work done ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ठीक है so therefore probability at least one of them solve is equal to 1 minus हाँ जी probability no one solves so आसान हो गया तो 1 minus probability no one solve मतलब कि A भी ना solve करे and B भी ना करे and C भी ना and D भी ना करे so that is it so ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ A B C D event independent ਹੈ ਨਾ and और ਉਹਨਾਂ ਦੀ multiplication ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ individually मल्टीप्लाई हो जाएगा पी बी बार पी सी बार ठीक है एंड बस बाकी तो फिर वैल्यू फिल करनी है ठीक है सो पी ए बार पी ए कितना पुत्र 1/2 तो पी ए बार थे 1 minus 1/2 आ जाएगा पी बी बार इतने 1 minus दिस पी सी बार 3/4 एंड 7/8 सो आ थोड़े को हो गया 8 64 256 21 so 256 minus 21 by 256 ठीक है so you get 235 by 256 ठीक है थोड़ा आंसर आ गया ते आगे चलते हैं वो कहते जी ई ते एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है the probability exactly one of them occurs चलो पहला exactly one of them की होंदा है एक बार डायग्राम तो याद करा दा अगर E है तो F है रीजन है बेटे E होवे बट F ना होवे
ठीक है, आ एफ होवे बट ई ना होवे। साਡਾ टोटल ग्रीन शेडेड रीजन है, ये की है एग्जैक्टली वन ऑफ दैम अकर्स, मतलब दिस प्लस दिस, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ दैम मीन्स कि ई होवे एंड एफ ना होवे आ, या है ना एग्जैक्टली वन ऑफ दैम कला ई, ਇਹਦੇ ਚ ई हो रहा एफ नहीं हो रहा, ਇਹਦੇ ਚ एफ हो रहा ई नहीं हो रहा, सो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ अगर प्लस करता सो ये प्रोबेबिलिटी आ गई एग्जैक्टली वन ऑफ दैम दी। ठीक है, दिस इज द गिवन डेटा, सो दैट इज इक्वल टू 11/25। एंड फिर कहते हैं प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम अकरिंग, नन ऑफ देम मतलब बाहर वाला है ना, नीदर ए नॉर बी, सो प्रोबेबिलिटी नीदर ए नॉर बी इज इक्वल टू 2/25। फिर की पुछदा देन द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, सो इस डाटा तो पीई ते पीएफ चाहिए तो वेरी ईजी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट दिते है और विच उन्हों का एंड है तो आ सीधा मल्टीप्लिकेशन खुल जाएगा, तो पहली इक्वेशन आ जाएगी पीई इंटू पी एफ बार प्लस पीई बार ते पी एफ दैट इज 11/25। तो एवें करो कि पीई ਨੂੰ मान लो x, ठीक है, पी एफ ਨੂੰ मान लो y, तो आई क्वेश्चन की आ गई x पी एफ बार 1 माइनस वाई। ठीक है, थोड़ा जा हल्का हो जाएगा ना सवाल, पीई बार 1 माइनस एक्स एंड पी एफ वाई, एक इक्वेशन आ गई x से y च, दूजी इथों कर लो पीई बार कितना होगा पुत्र, अच्छा पहले इन्हों एंड खोलो पीई बार क्योंकि इंडिपेंडेंट है मल्टीप्लाई हो गया, पी एफ बार इज 2/25, वट इज पीई बार 1 माइनस पीई एंड 1 माइनस एक्स, सो सेकेंड इक्वेशन आ गई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इज 2/25। ठीक है पुत्र, सो हुण आई होप ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ करना हुण, दो इक्वेशन आ गई साढ़े को एक्स के वाई है ना, मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, एक चो एक्स चक के दूजे पुट कर दो या वाई, या क्योंकि ऑप्शन सॉल्व करना मैंने लंबा लग रहा है, ईजी ऑप्शन चेक कर लो, पहला चेक कर लो एक्स 4/5, हाँ जी पुट कर लो ना, एक्स इक्वल टू 4/5 एंड वाई इक्वल टू 3/5, बिकॉज ऑप्शन अभी ईजी है और सॉल्व करना लंबा लग रहा है तो पुट चेक कर लो, सो 1 माइनस 4/5 दैट इज 1/5 इंटू 1 माइनस 3/5 2/5 दैट इज 2/25। ठीक है, आ तो सैटिस्फाई कर गया तो इनू एच भी पुट करो 4/5 1 माइनस दैट इज 2/5, ठीक है वेट, हाँ प्लस 1 माइनस एक्स 1/5 इंटू 3/5, हाँ जी कितना आ गया 25, 8 ते 11/25, बिल्कुल ठीक है। सो आप जीत गए, तो पहला इस ऑप्शन सैटिस्फाई कर गए, मोर ओवर जे ना होंदा तो एक दो होर चेक करने पैने ਸੀ, ठीक है सॉल्व करने वाला छोटा सी, ठीक है, सो एक से क्वेश्चन एडवांस का 11 का। ओके, हाँ जी, आ सवाल कहता है कि ए बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए यूनियन बी बार, सो ए यूनियन बी बार मतलब 1 माइनस ए यूनियन बी है ना, probability of any event bar is 1 minus probability of that event, so A union B the bar is 1 minus A union B, so ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ A union B ਆ ਜਾਊਗਾ that is 1/6, therefore probability of A or B आ गई 5/6। A intersection B पता है that is 1/4, PA bar, ठीक है, so 1 minus PA, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ PA आ गया 1 minus 1/4 3/4, so PA आ गया 3/4, तो A union B पता लग गया पुत्र, ए एंड बी आ गया तो ए पता है तो आई गेस पी बी आ जाऊगा है ना, बिकॉज पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, हाँ तो इतों पी बी कर लीए, सो ए यूनियन बी 5/6 पी ए 3/4 पी बी चाहिए पी ए एंड बी इज 1/4, सो देयरफॉर पी बी आ गया 5/6 plus this is 3/4 minus 1/4 that is 1/2, right, that is 2/4 1/2, और इधर आके आ जाएगा -1/2 that is PB है ना, सो इत्थे कर दो 3 ते इत्थे 6, so that is 2/6 that is 1/3, तो PB आ गया 1/3। अच्छा हुण ऑप्शन आ देखो, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑप्शन एक नज़र आ रही है कि जी इंडिपेंडेंट है इवेंट,
तो इंडिपेंडेंट कद होंगे कि पी ए एंड बी, ठीक है, दैट इज 1/4 एंड व्हाट इज पी ए इंटू पी बी, पी ए into PB is 3/4 into 1/3 that is also 1/4। सो बराबर आ गया, ਇਹਦਾ मतलब इवेंट्स की हो गए पुत्र इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वी लाइकली। तो क्लियरली पी ए ਤੇ ਪੀ ਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਏ ਤੇ ਬੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਟ ਨॉट ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, तो ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਡ not equally likely, right? अच्छा कहते पुत्र कि E and F are two independent events. The probability that both E and F happens, E भी होवे and F भी, that is 1/2. Probability that neither E ना A E होवे nor F, that is 1/2. Then इतना एक सब क्वेश्चन कीता है PE ते PF चाहिए, सो ये मैं थोड़ा ऑलरेडी करा चुका है। दैट इज़ वेरी सिंपल। एच तो क्योंकि इंडिपेंडेंट है एंड है तो प्रोडक्ट आ जाऊगा, है ना, ठीक है। इदा ये आ जाएगा पी ई बार इंटू पी एफ बार। सो पी ई नू एक्स मान लो, एनू मान लो वाई, तो दो इक्वेशन आ गई। सो पी ई बार इज़ 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस वाई। सो सिंपलीफाई दोनों इक्वेशनों सैमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, एक्स ते वाई थोड़े को आ जाएगा, ठीक है। दैट वी हैव डन ऑलरेडी, राइट। 16 मेंस का सवाल है, कहता कि टू फेयर 6 faced dice A and B are thrown simultaneously. So दो dice roll की थी। Even is the event that die A shows up 4, ठीक है। अच्छा even event की है कि पहली डाई ते या A ते 4 आवे। तो आई गेस टोटल एलिमेंट्स किन्ने होने सैंपल स्पेस 36। ईवन की है कि पहली ते 4 आवे, तो की हो गया 4 1 4 2 4 3, ठीक है, 4 4 4 5 ते 4 6। अच्छा इधर E2 है E3 है, कहता then which of the following is not true, which of the following is not true, okay। अच्छा E2 लाओ की है, हाँ जी E2 है, E2 is the event that die B shows up 2, है ना, die B 2 शो करेगा, मतलब it can be so 1 2 2 2 3 2 4 2, ठीक है। मतलब तुसी इवेंट लिख लेने हैं, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਓ 5 2 and 6 2। E3 ਕਹਿੰਦਾ the event that the sum of the numbers on both dice is odd, तो ਦੋਨਾਂ ਡਾਈਸ ਤੇ ਸਮ odd ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। तो ਸਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, 3 ਹੋਵੇ, 5 ਹੋਵੇ, 7 ਹੋਵੇ, 9 ਤੇ 11, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਾਂ 3 ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, 1 2 2 1, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 5 ਦੇ 7 ਦੇ 9 ਦੇ ਤੇ 11 ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ E3 ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਮ ਔਡ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ E1 E2 E3 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ PE1 and E2 and E3 should be equal to PE1 into PE2 into PE3, है ना। तो फॉर दिस टू बी इंडिपेंडेंट ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆ ਵੀ। ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਔਡ ਹੈ। E1 E2 'ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, E1 E2 'ਚ ਸਿਰਫ 4 2, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਔਰ E1 E2 ਤੇ E3 ਦਾ ਜਦ ਕਾਮਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ E1 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ E2 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ E3 ਤੇ 5 ਆ ਗਈ, ठीक है, क्योंकि आड़ी E3 है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 4 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 2 ਤੇ 6 ਹੈ, 6 ਤੇ ਸਮ E3 ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ E1 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ E2 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ E3 is 5, ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ 0।
ਔਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ E1 E2 E3 ਦੀ 0 नहीं है, इट इज सम नॉन जीरो नंबर, तो क्लियरली आए ਦੇ ਬਰਾਬਰ नहीं आएगा, तो आ वैसी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ E1 E3 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆ, ਕਾਮਨ ਕੱਢੋਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट आ जाएगा, बट ओवरऑल इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सानू सारा सॉल्व करने की लोड़ नहीं पई, क्योंकि नज़र आ गया ना कि यार कॉमन तो तिन्ना च कुछ है नहीं गा, आ वाला पासा तो जीरो हो जाना, आ नॉन जीरो है। PE1 कितना बेटे, आ 6 है, 36 चो दिस इज 6/36 है ना, and then PE2 कर लोगे P3, so this is some non-zero number, this is zero, so clearly and this option is not true, right? तो आ रिपीट होया क्वेश्चन तो ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, तो मैं ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 14 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ 13 ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ one of the three independent events E1 E2 E3 of the three independent events E1 E2 E3 one ऑफ है, तो पहला 3 इवेंट है, तो चलो वी कैन ड्रॉ क्विक डायग्राम, सो दिस इज E1 E2 ते E3। E1 is the probability that only E1 occurs, only E1 occurs ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਆ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, E1 ਹੋਵੇ मतलब ਕੀ ਹੈ, E1 ਹੋਵੇ and E2 ਨਾ ਹੋਵੇ and E3 ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, only E1 occurs ਆ, so therefore ਇਹਦੀ probability ਕਿੰਨੀ ਹੈ, अल्फा, so therefore probability only E1 occur मतलब E1 हो, E2 ना हो and E3 ना हो, ये है अल्फा। अब क्योंकि अच्छा क्योंकि इंडिपेंडेंट ਦਿੱਤੇ ਆ, ठीक है, E1 E2 E3 और विच एंड है, तो की हो जाएगा, प्रोडक्ट खुल जाएगा, दैट इज PE1 इंटू PE2 बार इंटू PE3 बार, ये अल्फा आ गया, राइट। एंड सिमिलरली ओनली E2 अकर्स, वो बीटा है, तो बीटा च की होगा, E2 होगा तो मतलब E2 के उपर बार नहीं आऊगा, बाकियों के उपर आ जाऊगा, E1 बार PE2 एंड E3 बार, एंड सिमिलरली गामा की कहता है, गामा ओनली E3 अकर्स। ठीक है, गामा है कि E3 होगा, बाकी दोनों नहीं होंगे, E1 बार E2 बार एंड E3 दी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और लास्ट कहता है लेट P बी द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द इवेंट्स अकर, नन ऑफ द मतलब आ वाला, ना ही E1 होवे एंड ना ही E2 एंड ना ही E3, दैट इज व्हाट, दैट इज P। सो P आ गया PE1 बार, ठीक है, E2 बार एंड PE3, हाले जो डाटा लिखा है गिवन है उन्होंने लिखते पे हैं, राइट। एक रिलेशन अल्फा बीटा गामा च आ दिता, एक आ दिता है, बाकी फिर जो पुछदा है ਇਹਦਾ मतलब की है, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਕਰੀਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ PE1 ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਓ, ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ x ਮੰਨ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, PE1 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ x, ठीक है, थोड़ा ਜਿਹਾ ਬਲਕੀਨੈਸ ਘਟ ਜੂਗੀ, PE2 ਮੰਨ ਲਓ y एंड PE3 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ z। सो ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ x y z ਮੰਨਿਆ, ਹੈ ਨਾ। तो पहला रिलेशन की है, पहला है क्या, x अल्फा इज इक्वल टू x E2 बार 1 माइनस वाई एंड 1 माइनस जेड, एक रिलेशन आ गया वाला। सिमिलरली बीटा की आ जाऊगा E1 बार 1 माइनस एक्स वाई थे 1 माइनस जेड एंड गामा इज 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई एंड जेड एंड P आ गया PE1 बार 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई एंड 1 माइनस जेड। सो आ थानू गिवन है पुत्र, ठीक है, आई होप अन्नी गल समझ आ गई है ना। हुण कुछ होर भी गिवन है, आ इक्वेशनां तो गिवन है ना, उन्होंने यूज़ करते हैं। वो कहता जी आ गिवन है अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू P इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड एक इक्वेशन आ गिवन है एंड फाइनली इन्हां दोनों रिलेशन चों आपां नूं एक्स वाई जैड आ जूगे और उन्हें पूछा की है probability of even x by z, मतलब एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंटली ना आन ते उन्हां दी रेशो आ जाऊगी। ठीक है, सो वी नीड एक्स वाई जेड फ्रॉम दैट। ठीक है, तो हुण जो दिता है तो आपां ना फर्ज ते ही बनता है, जो दिता है उन्होंने वरती है, इत्थे अल्फा बीटा ते पी दी वैल्यू आ चक के इत्थों रख दो, तो अल्फा आ वाला एक्स इंटू 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड माइनस 2 टाइम्स बीटा 2 times 1 minus x y and
इज इक्वल टू अल्फा। अच्छा इत्थे हले आ ब्रैकेट भी आनी है, मैं गलत लिखा, ठीक है, हले पी भी आना, ठीक है, आ वाला पी कितना पुत्र, आ तीनों ही है ना। अब ब्रैकेट मतलब 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई ते 1 माइनस जेड इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अल्फा ते बीटा ਨੂੰ मल्टीप्लाई करो, ਕੀ ਆਊਗਾ 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई ते 1 माइनस जेड वा लिखते, ठीक है, इनटू की बचे एक्स, एक बचा वाई ते एक 1 माइनस जेड आ गया 1 2 3। हाँ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਦੇਖੋ ਐਚ ਵੀ 1 ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੈਡ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਤੋਂ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੈਡ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ, तो नॉन जीरो नंबर कटेगा तो की बच गया आ एक्स माइनस एक्स वाई माइनस टू ना टू वाई प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू इधर एक्स वाई। सो माइनस एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई, उधर एक्स वाई कटिया गया आ गया जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू टू वाई, आ थोड़े को रिलेशन आ गया पहले चो, मतलब इतों एक्स बाय वाई टू आ गया। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਦੂਜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਨਿੰਗ ਅ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਗੇਂਸਟ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਇਜ਼ ਹਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 95 ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ 92 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਸ 2 ਮੈਚਸ ਵਿਦ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰ ਲਾਈਕ ਔਨ ਦਾ ਟਾਪ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਜਿਤਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹਾਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਫਰੋਮ ਮੈਚ ਟੂ ਮੈਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ that in a 5 match series 5 मैच खेडे गए, ठीक है, in a 5 match series India's second win probability किहदी चाहिदी है that India's second win occur at third test, second win at third test, ठीक है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਿਨ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ W ਇਵੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਨਸ अ पर्टिकुलर टेस्ट, ठीक है, एंड डब्ल्यू वार मान लें कि इंडिया डज नॉट विन, डज नॉट विन च मतलब लूज ड्रॉ सारा कुछ आ गया, राइट, ठीक है, इंडिया डज नॉट विन। हुण दूजी जित तीजे टेस्ट ते आवे ते की पॉसीबल केस बनते हैं, जिदा मैं एक बनता कि इत्थे जिते है ना और दूजी बार जिते, तो एक बनता कि या पहला जित जाए दूजा ना जिते फिर तीजे ते दूजी बार जित गया, ठीक है। सो एक हो गया कि आ पहला आ मतलब पहला टैसट जित जाए दूजा ना जिते ते तीजा जित जाए, तो ये भी इनू सैटिस्फाई कर दे, या हाँ जी की हो गए पहला ना जिते, ठीक है, दूजा भी जित जाए तो तीजा भी। सो इस केस भी की हो रहा कि जी दूजी विन है पुत्र वो तीजे टैसट आ रही, आ तो एवें दिते है ना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ तो सिर्फ तीजे टैसट ਤੇ दूजी विन चाहिए, ਹੁਣ मैच भावें 5 होण भावें 500 होण, है ना, सो वो मैटर ही नहीं करता। तो इस करके आ थोड़े इस इवेंट दे, ठीक है, पॉसीबल केसिस आ गए। हुण पहले टैसट जितना दूजे च ना जितना है ना, वो इंडिपेंडेंट एक दूजे से, तो देयरफॉर इंडिपेंडेंट है, पहला जिते एंड दूजा ना जिते एंड तीजा जिते एंड है एंड इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो सीधा मल्टीप्लाई खुल जाएगा, है ना। आ थोड़े को इनू ओपन अप करता। हुण वैल्यू पुट करो, हाँ जी, जितन की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटे हाफ, तो ना जितन की 1 माइनस हाफ हाफ, है ना, ठीक है। हुण ना जितन का मतलब है विच सारे आ जाने लूज ड्रॉ वट एवर, है ना, तो हाफ हाफ, तो 1/8 1/8 1/4 आंसर आ गया, ठीक है पुत्र।
इंडिया प्लेज 2 मैचेस विद ईच विद वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो 4 मैच खेले इंडिया ने, 2 वेस्ट इंडीज ना ते 2 ऑस्ट्रेलिया ना। इन एनी मैच द probability of India getting 0 point 1 and 2 point, मतलब सॉर्ट ऑफ हो गया ना, 0 होएगा जे हार जाएगा, 1 ਜਿਵੇਂ ਡਰਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 2 ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। तो 0 पॉइंट मतलब ਇਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਚ ਤੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 0.45 ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦ ਡਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਡਰਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 0.05, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1 ਪੁਆਇੰਟ। ਐਂਡ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ W ਹੈ ਨਾ, PW मतलब probability of winning a particular match, that is 0.5, ठीक है। ਆ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਦ ਆਊਟਕਮ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਚਸ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗੈਟਿੰਗ at least 7 point, India getting at least 7 points, ठीक है। अच्छा ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਚਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਚਸ ਆ 4 ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ। ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ 4 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਅਰਨ ਕਰੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਾਂ 7 ਹੋਣ ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ 'ਚੋਂ 2 ਮਿਲ ਜਾਣ, 8 ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦਾ। तो एटलीस्ट 7 का मतलब हो गया कि पॉइंट शुड बी इधर 7 और 8, या वो 7 पॉइंट अर्न करे 4 मैच खेड के, या 8 है ना। तो हुण 7 पॉइंट दे केसेस लिखने हैं, ठीक है। पॉइंट इधर किहड़े केसेस लिखने हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिस 7 पॉइंट अर्न करे या 8 अर्न करे। हुण 7 किद्दां अर्न करेगा, जिवें एक वे कि पहला, दूजा, तीजा जित जाए, चौथा ड्रा हो जाए है ना, जितन दे 2-2-2 6 हो गए, एक ड्रा ਦਾ 7 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਹੈ ਨਾ 7 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਰਾ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, W ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, PW ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਡਰਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, WDW ਹੈ ਨਾ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਏ, ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ D ਨੂੰ ਖਿਸਕਾਈ ਜਾਓ, WD, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ DWWW। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ, 3 ਜਿੱਤ ਤੇ 1 ਡਰਾ, 7 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। 8 ਕਦ ਹੋਊਗਾ, 4 ਜਿੱਤਣੇ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏ, ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਵੀ, ਤੀਜਾ ਵੀ, ਐਂਡ ਚੌਥਾ ਵੀ। ਬੇਟੇ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ PW ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਮੈਚ ਦੀ जो आउटकम है वो की है बेटे, इंडिपेंडेंट है और एंड है ना, पहले जिते एंड, दूजे, तीजे एंड, चौथे ड्रॉ। तो देयरफॉर ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, PW इंटू PW इंटू PD, ठीक है। अब पहले का आ गया। ऐदी एनू जब खोलांगे उस भी 3 W होने, 1 D होना है ना। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ तो कैन आई राइट 4 टाइम्स, और ਇਹਦਾ ਕੀ आ गया, PW इंटू, बस गल खत्म। हुण वैल्यू पुट कर दो, PW की वैल्यू कितनी बेटी, जितन की प्रॉबिलिटी 0.5, 0.5 3 बार, 0.5 का क्यूब। PD कितना है बेटे, 0.05 प्लस 0.5 की पावर 4। सो सिंपलीफाई एंड गेट द आंसर, राइट। ओके जी, अगला सवाल वो कहता है कि 6 फेस फेयर डाइस, ठीक है, एक डाई थ्रो की अनटिल 1 कम्स, मतलब एक डाई नूं आपां रोल करीए जब तक ही आ जाए 1 आ जाए। then the probability that 1 comes on even number of trials या throws, so probability that 1 comes on even number of throws। अच्छा इन्हूं सोच के देखो, एक्सपेरीमेंट समझो, डाइस रोल की मतलब पहली बार, ठीक है। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ कि 1 आवे, कद आवे, ईवन नंबर ऑफ थ्रो ते। वॉट डज दैट मीन, जिवें मतलब पहली बार रोल की, मतलब इस ईवेंट का पहला फेवरेबल केस दसने, डाइस रोल की ते 1 ना आवे, ये पहली बार तो नहीं है, ईवन तो चाहिए। फिर ये सी पहली बार, फिर दूजी बार रोल की डाइस,
ਫਿਰ 1 ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਤੇ ਆਵੇ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਰੂਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ A event मान लो that on particular rule we get 1, ठीक है। तो A बार की हो जाएगा 1 नहीं आएगा, तो किसी रूल ते 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है पुत्र 1/6 ते 1 ना आने की कितनी है 5/6। हुण ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ 1 ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਈਵਨ ਥਰੋ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਟਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ 1 ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ 1 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 5 ਆ ਗਿਆ, 1 ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 1 ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਟਿਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 1 ਆ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਗਏ ਆਪਾਂ। तो आ एक तरीका हो गया जितन का। या की होगा, पहली बार रोल किया 1 नहीं आया, दूजी बार रोल किया 1 नहीं आया, तीजी बार रोल किया 1 नहीं आया, चौथा ईवन आ गया ना, चौथी बार दिस इज द सेकंड विच इज ईवन, फोर्थ फिर 1 आ जाए। ऐसे की होएगा, पहली बार भी नहीं आएगा, दूजी भी नहीं आएगा, है ना, तीजी भी नहीं, चौथी भी नहीं, पंजवीं भी नहीं, फिर 6वां ईवन आ गया, आ जाएगा। और ये कहानी अप टू सो ऑन चलती रहेगी 8वीं 10वीं 12वीं बार। गल खत्म। हुण पहली बार 6 का ना आना, दूजी बार आना, और ये ईवेंट किसी भी रो डाइस का आउटकम बाकियां डाइस के आउटकम दे की हुंदा पुत्र इंडिपेंडेंट है। सो देयरफॉर दीज ऑल इवेंट्स ए बार आर इंडिपेंडेंट। तो एंड कह रहा ते की होगा, मल्टीप्लाई हो जाऊगा इवेंचुअली। तो ये आ गया पी ए बार, ठीक है। या मैं हुण वैल्यू सीधी फिल करना, सो इत्थे आ जाऊगा पी ए बार इंटू पी ए, इत्थे 3 बार पी ए बार इंटू पी ए, और पी ए बार कितना बेटे 5/6, दैट इज 5/6 इंटू 1/6, 5/6 का क्यूब इंटू 1/6, 5/6 की पावर 5, ठीक है, इंटू 1/6 अप टू इन्फिनिटी। सो ये थोड़े को इन्फिनिट जीपी सीरीज बन गई। सो सम आ जाएगा ए अपॉन ए आ गया 1 माइनस रेशो की है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 1/6 कट जाऊगा, ठीक है, 5/6 का स्क्वायर आ गया, राइट। तो आ सिंपलीफाई करके यू चेकआउट थोड़ा आंसर आ जाऊगा, ठीक है। सो ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कह रहा है इदा सवाल अंटिल दिस कम या वी डिड दिस, जब ये आ जाए फिर रुक जाएंगे, तो वो आप केसिस लावे जनरली जिवें सीरीज बनती है तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो आई होप कॉन्सैप्ट तुहानू क्लीयर है इंडिपेंडेंट इवेंट दे। बाकी फिर नैक्सट क्लास चलते बेटे।